السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ آج ہماری شارٹ عالمیت کورس کی کلاس نمبر 102 ہے، جس میں ٹاپک آپ کے سامنے چل رہا ہے ادیان عالم یا مذاہب عالم، اور اس میں جو ٹاپک ہمیں آج اللہ نے چاہا تو کلیئر کرنا ہے وہ ہے نصرانیت پارٹ 4. نصرانیت کے بارے میں پیچھے آپ کے سامنے 3 دروس الحمدللہ ہو چکے ہیں، جس میں بنیادی معلومات، ان کے عقائد کا رد کیا ہو سکتا ہے، اور عبادات، ان چیزوں کا تذکرہ الحمدللہ آپ کے سامنے آیا. آج نصرانیت پارٹ 4 میں آپ کے سامنے جو ٹاپکس آئیں گے اس میں سب سے پہلے نصرانیت میں انحراف کی وجوہات کیا ہیں، یعنی یہ دین اپنی اصلی شکل سے کیوں بگڑ گیا، اس میں اتنی ساری تبدیلیاں کیوں ہو گئیں، کیوں یہ دین ویسا باقی نہ رہا جیسا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے. تو نصرانیت میں انحراف کی وجوہات، یا آپ چاہیں تو نصرانیت میں تبدیلی کے ریزنز، وجوہات، جس آسان لفظ کو آپ لکھ سکتے ہیں آپ لکھ لیجئے. تو انحراف نصرانیت میں، نصرانیت کی تبدیلی میں، انحراف میں یا تحریف جو اس میں ہوئی، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج نصرانیت اپنی اصلی شکل پر باقی نہیں ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ظلم و ستم جو غیروں کی طرف سے کیا گیا، یا غیروں کا ظلم و ستم. غیروں کا ظلم و ستم، میں نے آپ کو پیچھے جب ذکر کر رہا تھا تاریخ کا، تو تاریخ میں میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلے ظلم کیا گیا، انہیں مارنے کی سازش کی گئی. انہیں مارنے کے بعد، یا اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اٹھا لیا، صرف جس کی شباہت دی گئی تھی انہیں مارنے کے بعد حواریوں پر ظلم شروع ہو گیا، انہیں ملک بدر کر دیا گیا. جہاں پر نصارہ ہوتے وہاں پر حملے شروع ہو جاتے، یہودیوں کے ظلم، دوسری قوموں کے ظلم کنٹینیوس قوم پر چلتے رہے. انہیں طاقت ملی جب روم ان کے ہاتھ میں آیا. آج بھی جو سب سے بڑی طاقت نصرانیت کی ہے وہ روم میں ہے، اٹلی، روم میں آج بھی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے ملک روم میں. اور آج بھی سب سے بڑا ان کا گرجا گھر جس میں یہ عبادت کرتے ہیں، اور جہاں پر ان کا پوپ رہتا ہے وہ جگہ اٹلی، روم شہر میں ہے. تو ان کو طاقت ملی جب روم میں ان کی حکومت ہوئی. حکومت آنے کے بعد انہیں طاقت ملی، ظلم کا خاتمہ ہوا، تو انہوں نے باقاعدہ اپنی دعوت کا آغاز کیا، باقاعدہ اپنے دین کی طرف لوگوں کو بلایا. لیکن جب ان پر ظلم ہوا، انہیں مارا پیٹا گیا، انہیں ملکوں سے بھگایا گیا، قتل عام کیا گیا، تو ان کی تعلیمات بدلتی چلی گئی، کیونکہ سند باقی نہ بچی نا. اب حواری جو سند کو لانے والے تھے، اگر حواری کوئی یہ کہتا کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، جیسے آج ہمارے پاس حدیثیں کیوں محفوظ ہے، کیونکہ ہمارے پاس پورے راویوں کی چینل موجود ہے. انہوں نے ان سے کہا، انہوں نے ان سے کہا، انہوں نے ان سے کہا، انہوں نے صحابی کو سنا، صحابی نے اللہ کے نبی کو سنا. پر وہ معاملہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ اس لیے نہیں رہا کہ ان پر قوموں نے اتنے ظلم کیے کہ ان کے حواری باقی نہ بچے، ان کے ساتھی باقی نہ بچے، ان کی تعلیمات کو پھیلانے والے باقی نہ بچے. اس ظلم کی وجہ سے نصرانیت کی اصل شکل بدل گئی، اصل شکل پر وہ باقی نہ رہا، ان کی اصل شکل کو تبدیل کر دیا گیا. اب جب غیر اس میں داخل ہوئے، جب ظلم کیا گیا، تو جسے جیسا موقع ملا وہ ان کے دل میں اپنی اعتبار سے چیزوں کو داخل کرتا گیا. تو دین نصارہ کی تبدیلی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو بنی وہ تھا غیروں کا ظلم و ستم جو ان پر کیا گیا. انہیں مارا گیا، پیٹا گیا، حضرت عیسیٰ پر قتل کی سازش کی گئی، حواریوں کو مارا گیا. ان تمام ظلم و ستم کا یہ نتیجہ نکلا کہ اصل دعوت جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی وہ غائب ہو گئی. نمبر 2، حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا جانا. انحراف کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا. اب بھائی ایسا تو تھا نہیں کہ آپ کو بہت لمبا وقت ملا، آپ کو ڈائریکٹ آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو تعلیمات میں کنفیوژن آنا تھا، تعلیمات میں دقت آنی تھی، آپ کے حواریوں تک یہ معلومات پہنچی نہیں تھی کہ آپ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے.
पहले से किसी को इल्म ही नहीं था, तो आपका जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया जाना नसरानियत के बदलने की एक बड़ी वजह बना कि जब नबी ही को उठा लिया गया, उनकी तालीम लाने वाले को ही उठा लिया गया, तो तालीमात कैसे लोगों तक पहुंचेंगी, कैसे दीन लोगों तक पहुंचेगा, कैसे असल तालीमात उन तक रहेंगी। तो हजरत ईसा का आसमान की तरफ उठा लिया जाना यह नसरानियत के बदलने की एक बड़ी वजह बना। नंबर 3, वो इंजील जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी गई थी वो गुम हो गई, और इसका इकरार जो है नसारा के बड़े बड़े उलमा ने किया है। और इसीलिए मैंने आपको पीछे बताया ना कि असल इंजील मौजूद नहीं थी, तो इंजील कौन सी आई, जो शागिर्दों ने लिखी, जो शागिर्दों ने जमा की। और मैंने आपको पीछे बताया कि इंजील जो इन लोगों के दरमियान मशहूर है वो सारी शागिर्दों की इंजीलें हैं, जो शागिर्दों ने जमा की, जो शागिर्दों ने बताई, जिस पर ये लोग ईमान रखते हैं। और वो 4 इंजीलों के नाम मैंने पीछे आपको तफसील के साथ बताए हैं कि इन्होंने इंजील को अपना दीन मान लिया। इंजील जो लेकर आए थे, चाहे जॉन के जरिए हो, चाहे मैथ्यू के जरिए हो, जितनी भी अनाजील का मैंने आपको तस्करा किया, लेकिन असल वो इंजील जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की थी, उनको दी थी, वो गायब हो गई। तो वो किताब गायब होना भी इनके इनहराफ की एक बहुत बड़ी वजह बनी। जैसे आज उसके कंपैरिजन में आप देखिए हमारे पास कुरान मौजूद है। अब अगर कोई आदमी इस्लाम में हराम को दाखिल करना चाहे, कर पाता है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में अगर कह दिया कि मुर्दा हराम है, शराब हराम है, अब चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले, इस्लाम में कभी वो शराब को हलाल नहीं कर पाएगा, मुर्दे को हलाल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कुरान मौजूद है ना, कुरान हमारे पास असली शक्ल में मौजूद है ना, कुरान की गारंटी मौजूद है ना, कुरान का लफ्ज लफ्ज मौजूद है ना, तो अब इसमें झूठ कैसे बोलोगे। लेकिन उस दौर में इंजील बाकी ना बची, इंजील गायब हो गई। हजरत ईसा का उठाया जाना, हवारियों को मारा पीटा जाना, कत्ल किया जाना, इस पूरे मंजर के बीच में इंजील गायब हो गई। अब जब असल किताब ही गायब हो गई, असल इंजील ही गायब हो गई, तो तालीमात कैसे उन तक पहुंचती। तो इंजील का गायब होना एक बहुत बड़ी वजह बनी नसरानियत में तब्दीली की। नंबर 4, उलमा का कत्ल किया जाना, क्योंकि यहूदियों ने जब भी इन पर हमला किया, यहूदी या यहूदी के अलावा दूसरी कौमों ने जब भी नसरानियत पर हमला किया, उन्होंने उलमा को कत्ल किया। अब उलमा ही तो है दीन को पहुंचाने वाले, आलिम ही तो है ना दीन को पहुंचाने वाले। आज जैसे मैं अगर आप तक दीन पहुंचा रहा हूं तो क्यों? क्योंकि मैंने दीन का इल्म हासिल किया है। अब बिना इल्म के तो मैं बता नहीं सकता ना। जैसे आज मैं आपको अगर ये मजाहिब भी पढ़ाता हूं तो पहले मैं पढ़ता हूं ना, स्टडी करता हूं, समझता हूं, सीखता हूं, जानता हूं, उसके बाद आप तक पहुंचाता हूं। लेकिन अगर ये पहुंचाने वाले ही खत्म हो जाए तो दीन मिलेगा, असल शक्ल आपको मिलेगी, बल्कि जो मिलेगा तब्दील किया हुआ मिलेगा, जिसमें कंफ्यूजन होगा, जिसमें बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो यहूदी और दूसरी कौमों के जरिए जब उलमाए नसारा का कत्ल किया गया, नसारा के उलमा को कत्ल किया गया, इन्हें मुल्क बदर किया गया, इधर से उधर भटकाया गया, इस नतीजे में ये दीन मुहर्रफ हो गया। अब जब आलिम बाकी ना बचे तो लोग किससे आलिम मानते हैं? जाहिल को। जो आज हमारी कौम में भी हाल बन रहा है ना कि आलिम की मौजूदगी में जाहिल को आलिम माना जाता है। एक ऐसा जाहिल जिसे दीन पता नहीं, कुरान पता नहीं, हदीस पता नहीं, दीन का इल्म नहीं रखता, लोग उससे दीन सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े अच्छे नजर आते हैं, यूट्यूब पे नजर आते हैं, उनकी बड़ी वीडियोस नजर आती हैं, अच्छे दाई हैं। तो ठीक है, वो दाई हैं अपनी फील्ड में, तो अपनी फील्ड का इल्म लीजिए, पर हलाल का इल्म, हराम का इल्म, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म उससे लीजिए जो दीन सिखाने की ताकत रखता हो, जिससे अरबी जबान का इल्म हो, जिसे सीखने सिखाने का इल्म हो, उससे इल्म लेना चाहिए। लेकिन जब नसारा में उलमा का कत्ल किया गया, उलमा को मारा गया, तो जब उलमा ना रहे तो लोगों ने जाहिलों को अपना रब बना लिया और उनसे दीन सीखा। इस वजह से भी नसारा के मजहब में बहुत ज्यादा तहरीफ और तब्दीली हो गई। नंबर 5, बार बार जुल्म सितम की वजह से दावत का काम स्लो हो गया। यह छठी वजह बनी, पांचवी वजह बनी। दावत का काम स्लो होने की पांचवी वजह क्या बनी कि इनका जुल्म सितम जब बहुत ज्यादा हुआ तो इन्हें दावत देने का वक्त ना मिला। भाई कैसे दावत देंगे आप? दावत तभी दे पाएंगे ना जब आप सुकून में होंगे, इत्मीनान में होंगे, जब आप पर कोई जुल्म नहीं होगा। अब आपको लग रहा है मुझे कोई मारने आ रहा है तो आप दावत का काम कर पाओगे। और इसकी मिसाल अल्लाह के नबी की जिंदगी को देख लो। मक्का में कितना दावत का काम आप कर पाए और मदीना में आपने कितना काम किया। मदीना के 10 साल मक्का के सालों पर भारी है। क्यों? क्योंकि आप फ्री थे, सुकून था,
इत्मीनान था, मुसलमानों की ताकत थी, तो दावत का काम करने का मौका ज्यादा मिला। लेकिन इधर जुल्म जब ज्यादा बढ़ा तो दावत का मौका ही नहीं मिला। अब जान बचाएंगे या दावत का काम करेंगे? तो इस वजह से भी दीन में तब्दीली हुई कि दावत का काम शुरुआती दौर में सही नहीं हो पाया, यानी जिस दौर में प्योर चीजें उनके पास थी तब दावत का काम नहीं कर पाए। अब बाद में जब हुआ तो जैसा मिला वैसी दावत दे दी, जैसा बताया गया वैसी दावत दे दी। और इसीलिए मैंने आपको पिछले अपने दर्स में बताया था कि इनके अकीदों पर अगर आप गौर करें, जरा सा दिमाग लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इनके अकीदे ऐसे हैं जो काबिल कबूल नहीं है, अकल कबूल नहीं करती। आप अकलन उनका रद्द कर सकते हैं और कुछ रुदूद मैंने आपको पीछे बताए भी थे। नंबर 6, छठी वजह, सेंट पॉल या शाऊल यहूदी का नसरानियत में दाखिल होना। शाऊल यहूदी, जिसे सेंट पॉल के नाम से जाना जाता है, जब वो नसरानियत में दाखिल हुआ, जिसके बारे में आपको पीछे में तफसील से बता चुका हूं कि जब वो नसरानियत में आया तो नसरानियत के उलमा ने उसे कबूल नहीं किया था। कई उलमा ने अपनी किताबों में लिखा कि एक यहूदी था जिसने दीन को बदला, नसरानियत के चेहरे को बदल दिया, और वो इसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन सेंट पॉल का आना नसरानियत में तहरीफ की एक बहुत बड़ी वजह था, बहुत बड़ी वजह। और यहां तक कि मैं आपको नीचे बताऊंगा, बड़े बड़े वो बुरे अकीदे जो आज नसरानियत में पाए जाते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं यही शख्स सेंट पॉल, जिसे शाऊल यहूदी कहा जाता है, वही जिम्मेदार है। तो शाऊल यहूदी का नसरानियत में दाखिल होना इस दीन में तहरीफ की एक बड़ी वजह बना। कुछ अकीदे में आपको बताऊं जो शाऊल यहूदी ने दिए थे। नंबर 1, हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, यह दावा देने वाला शाऊल यहूदी था। हजरत ईसा नाउजुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। नंबर 2, हजरत ईसा दुनिया में सूली इसलिए चढ़े ताकि लोगों के गुनाह माफ हो जाएं। ये 2 अकीदे अगर आप लिख लें तो बात आपके सामने क्लियर हो जाएगी। जो बुनियादी जड़ है, जो इनका बिगाड़ है, और वो बिगाड़ जिसको आज इन लोगों ने अपना असली दीन बना के लोगों के सामने पेश किया है कि हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानना और ये कहना कि हजरत ईसा के सूली चढ़ने से सबके गुनाह माफ हो गए, ये दोनों अकीदे देने वाला कौन? यही सेंट पॉल, शाऊल यहूदी, जिसने इस दीन में बड़ी तहरीफ की, बड़ी तब्दीली की, और उसकी वजह से यह दीन अपनी असली शक्ल से हट गया। ये बातें जब आप सामने रखेंगे ना किसी के, इंशाअल्लाह, तो आपकी बातों को समझेगा, गौर करेगा कि हां, इसके पास दीन का सही इल्म मौजूद है। नंबर 7, दूसरे मजाहिब का असर। यह भी एक बड़ी वजह बना नसरानियत की तब्दीली की, दूसरे मजाहिब का असर। जो मजाहिब इनके आसपास पाए जाते थे, जो मजाहिब इनके शहरों में और मुल्कों में पाए जाते थे, उनके अकीदों को भी इन्होंने अपने अंदर दाखिल कर लिया, उनके अकीदों को अपने में समेट लिया। मैं ये तो नहीं कहूंगा सेम टू सेम, लेकिन आज वैसी चीजें हमारे यहां भी मौजूद है। इंतकाल के बाद जो रस्में हमारे पास किसकी दी हुई है? गैर मुस्लिमों की। तीजा, दसवां, बरसी, कौन करता था ये सब? शादी का जो हमारे यहां सिस्टम बना हुआ है, हल्दी से लेकर मंगनी से लेकर आगे पीछे दहेज तक, किसका दिया हुआ है? गैर कौमों का। और ऐसे न जाने कितने आमाल, न जाने कितनी इबादतें, न जाने कितने त्योहार हैं जो हमें गैरों से आए, क्योंकि इंसान गैरों से सीखता है, उनका तासुर लेता है, अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ, और अगर लगता है ये चीज सही है तो वो कबूल कर लेता है। तो वैसा ही नसरानियत के साथ भी हुआ कि नसरानियत के मानने वालों ने गैर कौमों के तहजीब, तमद्दुन, रस्म और रिवाज को जब अपनाया तो असल दीन से भटक गए। जिसकी एक मिसाल आप देख लें, जो मैं पीछे आपको मैंने बताया था ना, तस्लीस का अकीदा, 1 में 3, अल्लाह, हजरत ईसा, जिब्रील अमीन, तस्लीस का अकीदा, जिसकी बुनियाद पर ये स्लेब बनाते हैं, 3 का जो निशान मानते हैं लोग, स्लेब का निशान बनाते हैं ना, तस्लीस का अकीदा। ये आप देखें सेम टू सेम आपको कहां मिलेगा? हिंदू मजहब में, जिसे आर्य मजहब कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 एक में। यह अकीदा कहां से आया? गैर मुस्लिमों का अकीदा नसारा ने पकड़ा और उन्होंने तस्लीस का अकीदा अपने अंदर ले आए, क्योंकि आर्या मजहब की तहजीब बहुत पुरानी है इस मुल्क में। जो आगे मेरा अगला टॉपिक वही आपके सामने रहेगा, आर्या मजहब, जिसे हिंदू मजहब के नाम से हम जानते हैं। अगला टॉपिक इंशाअल्लाह आपके सामने वही आने वाला है। तो बहरकैफ जब कोई कौम अपनी तहजीब को छोड़कर गैरों की तहजीब को अपनाती है तो असल शक्ल को भूल जाती है, असल दीन को भूल जाती है, अपने असल से भटक जाती है। और यही चीज नसरानियत के साथ भी हुई कि जब उन्होंने गैर कौमों का असर लेना शुरू किया, गैर कौमों से सीखना शुरू किया, तो वो अपनी असली शक्ल से भटक गए, असली शक्ल को छोड़ दिया, गलत पर आ गए, हराम पर आ गए, और अपने अंदर ऐसे अकीदों को दाखिल कर लिया जिन अकीदों का उनके मजहब से कोई लेना देना नहीं था। अगला टॉपिक
नसरानियत के फिरके, नसरानियत के फिरके, जैसे मैंने आपको बताया ना यहूदी मजहब के भी फिरके हैं, यहूदी मजहब में कई फिरके पाए जाते हैं, फिरकों का तस्करा मैंने आपके सामने किया, वैसे ही नसरानियत में फिरके पाए जाते हैं। इनमें भी ऐसा नहीं कि नसरानियत सिर्फ एक है, फिरके हैं और फिरकों के अलग अलग अपने अपने उसूल और ज़वाबित हैं। अब आप पहले एक तमहीद लिख लें कि नसरानियत में सब कुछ ठीक चल रहा था, दीन अपने मकाम पर था, लेकिन सन 70 ईस्वी में जब बैतुल मुकद्दस को मुनहदिम किया गया तो नसारा कमजोर हो गए, इनकी ताकत गिरती चली गई, और शाऊल यहूदी जब इनके दीन में दाखिल हुआ तो वो दीन जिसमें तौहीद पाई जाती थी उसे बदलकर उसने एक नई शक्ल दे दी। तो एक तमीद है जो आपके जहन में रहना चाहिए कि सन 70 ईस्वी में पहली मर्तबा बैतुल मुकद्दस को गिराया गया था, गिराने के बाद नसरानियों से उनकी ताकत कुव्वत सब कुछ छीन लिया गया था, ये भटकते फिर रहे थे। उसी दौर में कुछ आगे बढ़कर शाऊल यहूदी इस्लाम इनके नसरानियत में दाखिल हुआ और उसने इनके अकीदों को तब्दील किया था। उसके बाद इनमें फिरके बनना शुरू हुए। बुनियादी तौर पर नसरानियत में 3 फिरके पाए जाते हैं। अब 3 फिरकों में एक एक की मैं डिटेल बताते जाता हूं, इसलिए नंबर 1, 2 करके लिख लीजिए आप। नंबर 1 कैथोलिक, कैथोलिक पहला फिरका है इनका कैथोलिक। इनकी कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, कुछ खासियतें आपको बता दूं। नंबर 1, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप के जिस्म से निकले हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से नाउजुबिल्लाह निकले हैं। यह अकीदा है इनका, कैथोलिक जो चर्च वाले होते हैं या कैथोलिक जो फिरके वाले होते हैं, कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से निकले हैं, नाउजुबिल्लाह। नंबर 2, खून और मुर्दा जानवर हलाल मानते हैं ये लोग, खून और मुर्दा को हलाल मानते हैं ये लोग। ये अकीदा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर आपका जो साबका होगा ना वो कैथोलिक लोगों से ही होगा। सबसे ज्यादा असर इन्हीं लोगों का है, सबसे ज्यादा मशहूर ये लोग हैं और बहुत ज्यादा फैले हुए भी यही लोग हैं जिन्हें कैथोलिक कहा जाता है। तो इनका पहला अकीदा यह है कि हजरत ईसा जो है वो अल्लाह से निकले हैं, नाउजुबिल्लाह। दूसरा अकीदा यह है कि खून और मुर्दा अपने लिए हलाल मानते हैं ये लोग। नंबर 3, वेटिकन सिटी इटली में जो है वो इनका मेन मतलब इनकी जगह या मेन इबादत गाह है, और वहीं से सारी दुनिया में इनके मामलात चलते हैं। यानी इनका जो सेंटर है वो वेटिकन सिटी है और वहीं से इनके सारे मामलात, सारे उमूर, सारा दीन, हलाल हराम सब वहीं से चलता है। वेटिकन सिटी से इनका पूरा मामला चलता है। नंबर 4, तलाक हराम मानते हैं ये लोग, तलाक को हराम मानते हैं ये लोग कि तलाक देना हराम है। नंबर 5, अमेरिका और उसके आसपास जितने बड़े ममालिक हैं उसमें ज्यादातर कैथोलिक फिरके के मानने वाले लोग मौजूद हैं। अमेरिका और उसके आसपास जितने बड़े ममालिक हैं वहां पर ज्यादातर कैथोलिक फिक्र या कैथोलिक फिरके के मानने वाले लोग मौजूद हैं। और नंबर 6, इनका यह अकीदा है कि जो हमारा पॉप है वो मासूम अनिल खता है। जो पॉप होता है इनका, जिसे ये खुदा के दर्जे तक पहुंचा देते हैं अकीदे के एतबार से, वो उन्हें मासूम अनिल खता मानते हैं कि मासूम अनिल खता है, उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती, बल्कि वो तो गलतियां माफ करवा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि उसके सामने जाओ, कन्फेशन करो, वो माफ कर दे तो अल्लाह माफ कर देता है। यानी इतनी ताकत है उसकी कि आपके गुनाह माफ करवा सकता है। तो मासूम अनिल खता यानी इनोसेंट मानते हैं कि उससे कोई गुनाह हो नहीं सकता। दूसरा फिरका है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स इनका कोई खास अलग से यानी कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह से ये लोग चलते हो। हर चर्च का अपना कानून होता है। कोई ऐसा खास शहर, कोई खास चर्च नहीं जिससे पूरी दुनिया में ये लोग चलते हैं। हर चर्च का अपना एक कानून होता है और उस कानून को उस एरिया के लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि देखिए अब खुदाई मजहब तो है नहीं, अल्लाह की तरफ से तो है नहीं, तो इसलिए जिसको जैसा लगता है वो बना लेता है। ऑर्थोडॉक्स की खासियत यह है कि जहां पर भी इनका चर्च होता है वो पूरा एरिया उस चर्च के अंडर में होता है। वो कानून कायदे जो बना दे उसके एतबार से वो लोग अमल करते हैं। और नंबर 2,
रशिया और रशिया के आसपास के एरियो में ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स फिरके के मानने वाले लोग मौजूद हैं। रशिया और रशिया के आसपास के एरियो में ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स जो फिक्र है, जो फिरका है, उसके मानने वाले लोग मौजूद हैं। नंबर 3 पर आते हैं प्रोटेस्टेंट्स, तीसरा फिरका जो मशहूर है, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और प्रोटेस्टेंट्स। ये इनका तीसरा बड़ा फिरका है और इसकी भी कुछ डिटेल में आपको बता दूं क्योंकि ये ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स कम है, कैथोलिक सबसे ज्यादा है और उनके बाद प्रोटेस्टेंट्स लोग आते हैं, ज्यादातर इनका वजूद पाया जाता है। इनका जो मेन जिम्मेदार है उसका नाम है मार्टिन लूथर, जो सन 1600 ईस्वी में जाहिर हुआ और इसने नसरानियत में इस्लाह की कोशिश की, यानी जो अकीदों में बिगाड़ था, जो अकीदों में खराबियां थी, उसको सुधारने की इसने कोशिश की। मार्टिन लूथर इसका नाम था। सन 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में जाहिर हुआ और इसने नसरानियत में इस्लाह की कोशिशें की। नंबर 1 ये आपको लिखना है। नंबर 2, कोई किसी के गुनाह माफ नहीं करवा सकता, गुनाह माफ करने का काम सिर्फ अल्लाह का है जो तौबा से होता है। प्रोटेस्टेंट जो कबीला है, जो फिरका है, उसका यह मानना है कि कोई किस्सीस, कोई राहिब, कोई आलिम तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं करवा सकता, उसके सामने तुम जाकर कन्फेशन ना करो। गुनाह माफ करने का हक, इख्तियार सिर्फ अल्लाह को है और वो तौबा की बुनियाद पर गुनाहों को माफ करता है। नंबर 3, किसी की भी सूरत बनाना या स्टैच्यू बनाने को ये लोग हराम मानते हैं, यानी चर्च में, इबादत गाहों में स्टैच्यू लगाना, सूरतें और तस्वीरें लगाना, उसको यह लोग हराम मानते हैं। नंबर 4, रहबानियत को हराम मानते हैं कि दुनिया को त्याग दिया जाए, सारी दुनिया छोड़ दी जाए, खाना पीना, मतलब भाई इन्हीं दुनिया की जितनी नेमतें हैं, अच्छे बंगले, गाड़ी, सब छोड़ दो और एक तरफ चले जाओ, अकेले रहने लग जाओ। उस रहबानियत को ये लोग हराम मानते हैं कि रहबानियत सही अमल नहीं है, रहबानियत गलत है, रहबानियत का अमल सही नहीं है। नंबर 5, जापान, ब्रिटेन में इनका बहुत ज्यादा वजूद पाया जाता है। जापान और ब्रिटेन में ज्यादातर जो नसारा हैं वो प्रोटेस्टेंट फिरके से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर उसी फिरके के मानने वाले हैं। ज्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट्स फिरके के जुड़े हुए लोग वहां पर मौजूद हैं और इसी तरीके पर वो लोग काम करते हैं, इसी तरीके पर वो लोग पाए जाते हैं और इनका वहां पर बहुत ज्यादा वजूद है, बहुत ज्यादा इनको मतलब वहां पर ताकत हासिल है, कुव्वत हासिल है। चाहे ब्रिटेन का एरिया हो, चाहे जापान का एरिया हो, ज्यादातर इसी कबीले के या इसी फिरके के लोग वहां पर पाए जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर नसरानियत में मैंने आपको पहली चीज तो यह बताई कि इनहिराफ की वजूहात क्या हैं, जो आज दीन बदली हुई शक्ल में हमारे पास मौजूद है, उसकी वजूहात क्या हैं। वो इनहिराफ की वजूहात आपने जानी, 7 वजूहात मैंने आपको बताई। उसके बाद हमने ये देखा कि इसमें कितने मशहूर फिरके पाए जाते हैं, कितनी जमातें या कितने फिरके इनमें पाए जाते हैं, क्योंकि आप अहादीस को अगर देखें तो मैंने तो 3 का तज़किरा किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा, इरशाद फरमाया कि इफ्तरक़तिल यहूद अला 71 मिल्ला, यहूदी 71 फिरकों में बढ़ गए, नसारा 72 में बढ़ गए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि नसरानियत में तो 73 से ज्यादा फिरके हैं, पर बुनियादी जो तालीमात है उसके एतबार से आज जो हमारे सामने मौजूद है नसरानियत, उनमें 3 मशहूर फिरके पाए जाते हैं, कैथोलिक हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, प्रोटेस्टेंट हैं। पर बुनियादी तौर पर अगर आप इन्हें दावत देने जाएं तो आपको जो पीछे मैंने बातें बताई, पीछे जो अकीदे बताए, ज्यादातर उन अकीदों पर मुत्तफिक पाए जाते हैं, कुछ एक का इख्तिलाफ है, लेकिन ये अल्लाह के नबी को ना मानना, दीन इस्लाम को ना मानना, अपने आप को सुपीरियर मानना, शराब का इस्तेमाल है, सुअरों का इस्तेमाल है, और भी कई चीजें जो इनमें कॉमनली पाई जाती हैं, इन कौमों में कॉमन पाई जाती हैं, उनकी बेस पर, उनकी बुनियाद पर भी इन्हें आप दावत दे सकते हैं। दावत के तरीके के जरिए जो मैं इंशाअल्लाह आपके सामने आगे जिक्र करूंगा कि इस कौम को दावत कैसे दी जाए, इस कौम को दावत का तरीका क्या हो, आगे वो तस्करा आपके सामने इंशाअल्लाह आएगा ही सही। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ इतना मकसद है कि इन अकीदों को जब तक आप अपने जहन में नहीं रखेंगे कि कौन सी फिक्र लेकर कौन चल रहा है, कौन से फिरके में कौन कौन सी सोच पाई जाती है, तब तक आप दावत नहीं दे पाएंगे। क्योंकि देखिए, दावत के लिए गोल सेट करना जरूरी है।
آپ کو اگر یہ پتا نہ ہو کہ میں جس کو دعوت دینے جا رہا ہوں اس کا عقیدہ کیا ہے تو آپ دعوت کیسے دیں گے، اس کا رد کیسے کریں گے، اس کو کیسے ڈینائی کریں گے کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، آپ کا عقیدہ ایسے غلط ایسے غلط ایسے غلط. تو اس لیے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا. آپ غیر مسلم کو دعوت دینے جا رہے ہیں تو کون سا غیر مسلم ہے؟ ایسا نہیں کہ سارے غیر مسلموں کو ایک دعوت دی جائے گی، کیونکہ میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دعوت کو دیکھیں تو دعوت کے طریقے ملیں گے آپ کو قرآن میں. کفار مکہ سے بات کرنے کا انداز الگ، سرداروں سے بات کرنے کا انداز الگ، غریبوں سے بات کرنے کا، غلاموں سے بات کرنے کا انداز الگ، طائف والوں سے بات کرنے کا انداز الگ. یعنی دعوت جو ہے مدعو کو دیکھ کر دی جاتی ہے کہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا لیول کیا ہے، کون سی چیز وہ ایکسپٹ کرے گا کون سی نہیں کرے گا. اس کے لیول پر جا کر جب آپ اسے دعوت دیں گے نا تب وہ آپ کی دعوت کو قبول کرے گا، نہیں تو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا. تو اس لیے دعوت کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کسے دعوت دے رہے ہیں اور کیا دعوت دے رہے ہیں. آج کے درس کے لیے میں انہی پر اپنی بات ختم کروں گا. کل انشاءاللہ اس کے آگے کا جو چھوٹا سا ایک ٹاپک بچا ہے کہ نصرانیت اپنی دعوت کیسے دیتی ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے انشاءاللہ. وہ بھی کس کس طریقے سے وہ لوگ دعوت دیتے ہیں وہ بیان کروں گا. اللہ کے نبی کی بشارتیں کیا ان کی کتابوں میں اس کو ذکر کروں گا آپ کے سامنے. اور پھر آخر میں انہیں دعوت کیسے دی جائے، کون کون سے چیزوں پر انہیں آپ دعوت دے سکتے ہیں، دعوت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کل کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، تیرے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.